Jaipur. Okay. Okay. And Yes, ma'am. Deepika, where are you from? No? Okay. That's okay. So I would like to ask you one thing. Whenever from in the meeting you have any kind of question, hold it for the last so you can ask me anything if you want after I'm done with the presentation. Because actually what happened yesterday, I had a meeting and because of some internet problem, the meeting didn't get complete, my presentation, I wasn't able to completely finish the syllabus for yesterday. So you're all new today, so I'll be kind of starting it from, I'll giving you an overview of what I taught yesterday. And jitna bacha tha, I'll tell you in a very, because I think the class is only for half an hour, I guess. So मैं चाहूंगी कि मैं फटाफट आप लोगों का करवा दूं. Is it okay? Yes, ma'am. No problem. Give me just a second. I'll share the screen with you. So is the screen visible to you? Yes, ma'am. Now it is visible. Okay. Because it's taking a little bit. It's a little bit slow because my laptop is not that new, so that is why it is being a little bit of a diva. So, okay, now is it visible? No, hold on a second, please. Okay, is it visible? आपको दिख रहा है अच्छे से? Yes, ma'am. It is visible. Okay. So again, it's not actually technically day 64, but I thought कि मैं आप लोगों को एक बार कल का overview दे दूं. Right? Let's start with the next thing. Now the quote of the day was, every accomplishment starts with the decision to try. Now what do we learn from this is कि accomplishment क्या है? Accomplishment है जब आप किसी चीज को पूरी तरह से करते हैं, right? And वो चीज तभी हो पाएगी जब आप कोशिश करो. When you don't try, nothing is gonna come to you, because eventually जो भी आप करना चाहते हो, you have to work for it. Because you know hard work is the key to success, right? So without doing any kind of work, without trying or without making a decision to try कि हाँ मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, you can't achieve a single thing in your life, right? Because कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलेगी. कोई भी अचीवमेंट, कोई भी प्रमोशन, कोई भी जॉब, कोई भी चीज हमें ऐसा बिना मेहनत के नहीं मिल जाती. So we have to work for it, and it all starts when you decide अब मैं ट्राई करूंगी. Because अगर मैंने यहाँ मन लगा दिया तो मैं करती. That's why it's saying every accomplishment starts with a decision to try. Okay. Next we go to the word of the day. If you want, you can take the screenshot of the slides I'm giving you, and I think the meeting is also being recorded, so the group might be made. I don't know. अगर आपको चाहिए screenshot तो आप कर सकते हो. Okay, so word of the day is commitment. Now commitment का मतलब क्या होता है? Commitment का मतलब है कि जब मैंने एक दृढ़ फैसला कर लेना कि जब मैंने एक काम करना है तो मैंने वो काम करके दिखाना है, राइट? तो उसको आपको अंदर की जो एक पावर आती है ना, अपने अंदर एक फीलिंग आती है, इमोशन आता है कि मैंने जो खाना है मैं वो करके रहूंगा या करके रहूंगी, राइट? सो उस फीलिंग को हम कहते हैं कमिटमेंट. ओके. Yes, ma'am. Yes. हाँ. So I'm audible to all of you, right? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैम No, मैं ma'am. कोई दूसरी बात में कमिटमेंट मतलब इमोशन का कर सकता हूँ क्या मैम? हाँ, कमिटमेंट एक तरह से ना आपका खुद का एक इमोशन है. कमिटमेंट यानी कि जब आप किसी चीज, कोई भी काम हो, कोई भी आपने कोई डिसीजन ही क्यों ना लेना हो, आपने कोई काम करना हो या किसी के लिए काम करना हो या खुद के लिए काम करना हो, उस सारी प्रोसेस में जब आप एक पक्का इरादा कर देते हो ना, कमिटमेंट यानी कि पक्का इरादा. आपने उस काम को पूरा करने के लिए ठान लिया और आप अपना पूरा पक्के इरादे से उस काम में पूरा ध्यान से करते हो, एंड में फिर आप अपना डिजायरेबल जो रिजल्ट है अचीव करते हो. ओके.
So the state or quality of being dedicated. Dedicated काफी मतलब कि इसके लिए अच्छा है. अगर आपको कोई पूछे कि what do you mean by commitment, you just simply have to say it is being dedicated to something, dedicated to a cause, dedicated to an activity, etc. तो dedicated है वो यहाँ पे आपका कीवर्ड, राइट? अगर आप commitment यूज करो, आप dedicated यूज करो, it's one of the same. Okay, let's go to the next one. So जो हमारा टॉपिक था कल का, सॉरी, दैट वाज यूजफुल फ्रेजेस, यानी कि उपयोगी वाक्यांश, यानी कि वो सेंटेंसेस या वो वाक्य जो हम अपनी डेली लाइफ में हमें बड़े यूजफुल होते हैं, राइट? जैसे कि हम कभी किसी से मिल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी हम क्या कहते हैं, किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं जिससे हम काफी टाइम से नहीं मिले, तो हम उससे पूछते हैं हेलो, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन इन ऑल दीज इयर्स, ठीक है ना? तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम जब किसी से मिल रहे हैं तो हमने क्या, कौन सी फ्रेज कब यूज करनी है. एंड दिस आल्सो वर्क्स फॉर इन अ सिचुएशन जहां पे आप बड़ा ही कोई मीटिंग में, फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो. फॉर्मल मीटिंग होगी जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हो, अपने कोलीग से बात कर रहे हो, जो आपके साथ काम करते हैं वो कोलीग्स होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हो, अपने किसी सुपीरियर पोजीशन से. एंड ये सिर्फ ऑफिस से लेना देना नहीं है इसका, उसमें आपका स्कूल में भी हो सकता है. अगर आप में से कोई अगर स्कूल में है, यू आर टॉकिंग टू योर टीचर्स, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट. एंड व्हाट, जो भी आप उनके साथ वार्तालाप कर रहे हो, जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, इट्स अ वेरी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, राइट? व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ प्रिंसिपल मैम और यू आर टॉकिंग टू द एचओडी, मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, तो आप उनसे कैजुअली जाके तो नहीं ना बोल सकते हेलो मैम कैसे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कि क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसा तो नहीं ना बोल सकते. यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी पोलाइट व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम. Okay, so useful phrases में हमारे पास आया कि speaking English can be difficult and scary even for local speakers, यानी कि, और लोकल के लिए मैं आपको एक नया वर्ड बता सकती हूँ, वो है नेटिव. नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो अपने देश में रह के अपनी भाषा बोलते हैं, जो कहीं इसी देश में, कोई भी पर्टिकुलर देश में पैदा हुए होते हैं, बड़े हुए. जरूरी नहीं कि आप मतलब कि, हाँ, जो पैदा हुए होते हैं जरूरी हो, सॉरी, जो पैदा हुए होते हैं और जो बड़े हुए होते हैं. जैसे कि मैं इंडिया में बड़ी हुई, इंडिया में पैदा हुई हूँ और इंडिया में बड़ी हुई हूँ, आई एम अ नेटिव स्पीकर. आप लोग भी, आप लोग जहां से भी, उससे फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि अगर आप, जैसे आपने बताया छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से, इट डजंट मैटर, अल्टीमेटली हम सारे इंडिया से ही है ना. सो कहते हैं कि, और हमें पता ही है कि इंडिया की अभी हालत एजुकेशन में इतनी फॉरवर्ड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, लाइक अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड सो मेनी कंट्रीज जो काफी हमसे डेवलप्ड हैं. So we know that speaking English for the regular local people can also be very difficult. And ये हमने देखा क्योंकि हमारे इंडिया में illiteracy level अभी भी काफी है. So, however, there are many phrases you can use again and again in your daily life. If you learn these phrases and practice them, you will start to feel more comfortable speaking English with friends, colleagues, or strangers. Now, अब आपने डेली बेसिस पे जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने कॉलीग से मिलते हो, और आजकल स्ट्रेंजर से भी हम मिलते हैं. तो स्ट्रेंजर से आगे जाके हमारे कभी कभार दोस्त बनते हैं, कभी कभार नहीं दोस्त, राइट? तो उनसे बात करने के लिए कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन. अगर आपने किसी स्ट्रेंजर पे या अपने कोलीग पे या अपने किसी बॉस पे या अपने टीचर पे पहला इंप्रेशन अच्छा डाल दिया ना, that will remain imprinted on their mind. Imprinted यानी कि वो छाप उसकी छूट जाएगी. यानी कि अगर आपने पहली बार उनको अच्छा इंप्रेशन दे दिया तो वो हमेशा आपको उस इंसान से याद करेंगे जिसने मुझसे बड़े अच्छे से बात की, बड़े अच्छे शब्द यूज किए, and he or she was very polite to me and they talked in a very beautiful manner. Okay? Yes, ma'am. Am I? हाँ, मुझे बता दिया करो because I can't see the Zoom का page, right? So I'm on my slideshow. So give me कोई भी अगर आवाज ना आ रही हो या वीडियो ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे उसी समय इंस्टेंटली बता देना. ओके? सो Okay, ma'am. हाँ, ओके. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हाँ, और अगर आपको अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, वोकैबुलरी, और कई लोगों को होता है जिनको वोकैबुलरी का भी प्रॉब्लम है और प्रोनाउंसिएशन का भी प्रॉब्लम है. लेकिन कई लोग होते हैं जिनको शब्द बोलने, जिनको शब्द पता है, दे आर वेरी गुड इन देयर मेमोरी, दे नो गुड अमाउंट ऑफ वर्ड्स, उनकी वोकैबुलरी अच्छी है, लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन में लात खा जाती है. सो प्रोनाउंसिएशन अगर आपने ठीक करनी है ना, उसका फायदा तभी होगा
जब आप कोई नए वर्ड सीख रहे हो, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, मिरर के आगे खड़े होकर दिन में कम से कम 10 बार तो उस चीज को, उस वर्ड को रिपीट करो ही करो, सेंटेंस को करो। आजकल गूगल पे कितनी न्यूज आती है, आप गूगल में कोई भी डेली न्यूज खोल सकते हो, उसकी लाइंस को आपने 2-3 या पैराग्राफ पकड़ लिया, उस पैराग्राफ को 10 बार पढ़ो, क्या पता उसमें से 2-3 नए शब्द तो आपको मिल ही जाएंगे ना, वो चीज तो होती होती। सो द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, आपको प्रोनाउंसिएशन बस एक बार सुननी है, उस प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं होती, सबका अपना बोलने का तरीका होता है। बिकॉज अगर हम एक शब्द ले लें, बिकॉज इंग्लिश कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जो कि पर्टिकुलर एक उससे चल रहा है, रूल से, नो। जैसे कि अगर हम अपने वर्ड्स को प्रॉपरली एनंसिएट करते हैं, एनंसिएट मतलब उसको पूरी तरह से बोलते हैं, अपने पूरे टंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे वॉवल्स होते हैं A E I O U, इनको हम पूरी तरह से बोलते हैं, और हमारे वीज और हमारे डब्ल्यूज, उनको भी हम अच्छे से पूरा बोलते हैं, राइट। अब बाहर का आप देखो, अमेरिका को देखो, इंग्लैंड को देखो, उन लोगों के बोलने का तरीका कितना डिफरेंट है। वो लोग तो अपने आर को बोलते भी नहीं, जैसे कि अगर आप इंग्लिश, जो ब्रिटेन की इंग्लिश लोग, इंग्लैंड की इंग्लिश लोग, वो, सॉरी, वो लोग आर को तो खा ही जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं ना करते, हम पूरा बोलते हैं। वाटर, और भी कितने सारे, रैट, रोप, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसमें हम आर को पूरा अपने टंग से रोल कर रहे हैं, वो लोग तो वो भी नहीं करते। सो आपको अपने इंडियन इंग्लिश के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन आपकी समझ आ जानी चाहिए अगले बंदे को, मतलब तो सबको पता लग ही जाता है। अगर आप थोड़ा भी वर्ड क्लोज बोलते हो ना, जो उसकी कहते हैं ना एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मानी जाती है, उससे आप क्लोज क्लोज भी बोल रहे हो उस वर्ड को, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। अगले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट। सो एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही शब्द उस समय इस्तेमाल कर रहे हो, यू नॉट फंबलिंग योर वर्ड्स, बिकॉज उसका फिर अगले को भी समझ नहीं आएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर वो चीज ना बैठती नहीं, राइट। सो एक बार आपकी प्रैक्टिस, आपके बोलने का जो सलीका है वो ठीक हो जाएगा, उससे आपको फिर प्रॉब्लम कम होती जाएगी। सो जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेजेस दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गए, फॉर्मल फ्रेजेस को हम तब यूज करते हैं जब हम एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हो, और इनफॉर्मल फ्रेजेस को हम तब यूज करते हैं जब हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन तब होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने बॉस के साथ हो गई, अपने टीचर्स के साथ हो गई, अपने एल्डर्स के साथ हो गई, अपने स्ट्रेंजर्स, किसी स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो, किसी क्लाइंट से मिल रहे हो, वो सारी कॉन्वर्सेशन फॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना। इनफॉर्मल हो गई, मम्मा पापा के साथ जैसे बात कर रहे हो, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, या फिर उन लोगों से बात कर रहे हो जिनसे आपकी दोस्ती काफी अच्छी है, भले वो आपके सीनियर क्यों ना हो, जैसे कि आपके घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदारों से पूछे, हाँ मासी कैसी हो आजकल, लाइक ऐसे बोलते हैं ना, ये सारी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट वन। सो मैं आपको ना इससे क्विकली गो थ्रू करा देती हूँ, बिकॉज वी हैव ओनली 15 मिनट्स, तो मैं आपको पूरा आज कराना चाहती हूँ। सो इन्विटेशन के लिए फ्रेजेस, इन्विटेशन के लिए फ्रेजेस, लेट मी चेक माय कैलेंडर, नॉट चेकिंग योर एक्चुअल कैलेंडर। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फोन पे कैलेंडर खोल के चेक करना शुरू करूँ, नहीं, इतने बेवकूफ नहीं होते लोग। मैम हाँ, एक बार आप तो क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपीट कर सकते हैं मैम? हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल नो प्रॉब्लम। देखो, फॉर्मल मैम रिपीट कॉन्वर्सेशन, कर दीजिए, हाँ जी, हम भी अभी अभी आए हैं, रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, आप अपने आपको आपने कल कहाँ तक, आप कल भी थे ना शायद, हम थे, हम भी। हाँ, तो आपने तो ये कर लिया था, आपके साथ तो मैंने ये किया था, सो आप थोड़ा वेट मैम कर कल लो। आप चले गए थे सवेरे, क्या हुआ? कल आप जल्दी चल गए थे। वो जल्दी नहीं चली गई थी, एक्चुअली वो मीटिंग का जो टाइम लिमिट होता है ना जूम में 40 मिनट का, वो पूरा हो गया था, फिर वो टाइम ओके पीरियड ओके थोड़ा एक्सपायर हो गया, इसलिए। चलो ओके मैम, आप ओके, मेरे साथ थैंक सुन यू। लो, मैं, हाँ कोई बात नहीं, मैम आप सिर्फ आप म्यूट कर लो उसी अपने टाइम आप को। लैब आते हैं मैम? हाँ जी, मैम सिर्फ आप 6 to 8 लैब आते हैं या फिर और भी टाइम में आते हैं? नहीं नहीं, मैं होती हूँ 5 to 6, एक्चुअली आज थोड़ा वो लिंक का इशू हो गया, वरना मेरी 5 to 6 में है। 5 to, आई मीन एक दो दिन 5 to 5:30 रहेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा अपने कॉलेज का भी काम है, थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरा, लेकिन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज फास्ट एज आई कैन, ताकि मैं 1 घंटे की पूरी क्लास करूँ। ओके मैम। हाँ, सो मैं आपको ये फटाफट फ्रेजेस करा देती हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर टुडेज एंड आई वांट टू फिनिश दिस प्रेजेंटेशन। सो फ्रेजेस फॉर इनविटेशन, लेट मी चेक माय कैलेंडर, यानी कि मुझे मेरा शेड्यूल चेक करना। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर डिनर? क्या आप मुझे डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कॉन्वर्सेशन दोनों में यूज हो सकता है।
फिर आता है हाउ अबाउट अ गेम ऑफ फुटबॉल ऑन मंडे। अब आपने यहाँ पे वैसे भी फुटबॉल का इतना नहीं है क्रेज, लेकिन क्रिकेट का है। लाइक हाउ अबाउट अ गेम ऑफ क्रिकेट ऑन मंडे, क्या तुम मेरे साथ मंडे को एक क्रिकेट की गेम खेलना चाहोगे? राइट, फोन्स बजते रहते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज एम आई ऑडिबल राइट? Yes, मैम ma'am. मैं फॉर्मल का यूज किस जगह पे ज्यादातर यूज करते हैं मैम? कौन से वाले? फॉर्मल का यूज में मतलब एग्जैक्ट कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, और इनफॉर्मल का मतलब एग्जांपल्स वगैरह फॉर्मल, बता दीजिए ना। हाँ हाँ मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है जब हम उन लोगों के बीच में बात करते हैं जो हमारे ना क्लोज फ्रेंड्स ना हो या फैमिली ना हो, जैसे कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, नाना नानी, चाचा चाची, जितने भी क्लोज फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप मोस्टली इनफॉर्मल रहते हो, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है ना, अच्छा। हे ब्रो, व्हाट्सअप एंड ऑल दैट। लेकिन जब आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू हैव टू मेक वेरी श्योर दैट यू आर स्पीकिंग, नंबर वन यू आर वेरी पोलाइट, बिल्कुल भी अगले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है ना, बिकॉज फॉर्मल कॉन्वर्सेशन उस केसेस में होती है जब आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हो, या अपने किसी पोटेंशियल क्लाइंट से बात कर रहे हो जिससे आपको बिजनेस मिल सकता है, या फिर अपने स्कूल के टीचर से बात कर रहे हो, या अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, जिनके पास पोजिशन है, अथॉरिटी है, उन लोगों से अगर आप बात कर रहे हो ना, तो वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। जैसे कि जॉब इंटरव्यू में क्या आप अपने इंटरव्यूअर को जाके बोल सकते हो कि कैसे हो भाई, क्या हाल चल रहा है आपकी जिंदगी की? नहीं ना बोल सकते, यू कांट से दैट। यू हैव टू नहीं। बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी, आपको अच्छे से बैठना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है। और वो कॉन्फिडेंट आप तभी दिखा सकते हो जब आप उनसे फॉर्मली बात करते हो। आप उनसे लाइक ऐसे बोलते हे ब्रो व्हाट्सअप, क्या आप अपने इंटरव्यू जिसे आपसे ले रहा है वो आपको हायर करेगा? अभी हायर नहीं करेगा, उस समय रिजेक्ट करके कहेगा बाय बाय, कोई जरूरत नहीं। हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज चाहिए जिनको अपने एम्प्लॉयर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है, हमारे साथ दोस्ती करने नहीं आए हो, हमारे साथ काम करने आए। ओके, तो बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड, या आपके जितने भी सुपीरियर है ना आपके ऊपर, उम्र में भी हो और पोजीशन में भी हो, उनके साथ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही होती है। उनके साथ आप इनफॉर्मल तब हो सकते हो व्हेन यू आर नॉट ऑन योर, अपनी कंपनी में नहीं हो या स्कूल से बाहर हो, जब आप अपने काम करने की जगह या पढ़ने की जगह से बाहर हो ना, वहां आप थोड़े, अगर आप उनको जानते हो, अगर आप उनको उनके साथ काम करते हो, लाइक 1-2 साल हो गए हैं एंड यू नो देम, तो अपनी कंपनी से बाहर निकल के आप इनफॉर्मली उनसे बात कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं कि ज्यादा उनके साथ फ्रैंक हो जाओ, नहीं, फिर भी थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा फॉर्मेलिटी रखनी पड़ती है, बिकॉज एंड में वो तो आपके बॉस ही है ना, आपसे बड़े हैं ना, आपसे मतलब आपसे पोजीशन में ऊपर है, ठीक है। ओके मैम, बहुत अच्छा समझ में आया मैम। हाँ, चलो, अब ये इनविटेशन वाला फ्रेजेस है कि वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद मी टुमारो, क्या तुम मेरे साथ कल ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? आराम से आप ये फॉर्मली भी पूछ सकते हो, इनफॉर्मली भी पूछ सकते हो, बट मोस्टली आप इसको फॉर्मल में यूज करना। आई हैव गॉट 2 tickets फॉर अ सिनेमा ऑन सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम? अब देखो, अगर इस सेंटेंस को हम इनफॉर्मल में लिखें ना, मतलब बोले, तो हम कहेंगे कि आई हैव गॉट 2 tickets फॉर द सिनेमा, लेट्स गो टुमारो। दैट इज वेरी इनफॉर्मल, बिकॉज आप उनको बोल रहे हो कि तू चल मेरे साथ, तो चलते हैं, मेरे पास 2 टिकट नहीं। आपको फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में उनसे पूछना, आपने उनसे पूछना, बिकॉज आपको उनकी जरूरत है, उन्होंने आपको आके नहीं पूछा, आपने उनको जाके पूछा। सो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल कि आप किस तरह से उनसे पूछते हो, और इतने प्यार से पूछो कि अगला मान जाए, राइट? So then you will ask, I have got 2 tickets for a cinema on Saturday. Would you like to come? Would you like to come? जब आपने ऐड कर दिया ना, तो अगले को लगता है कि हाँ भाई, इसने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट से पूछा है, फिर वो कंसिडर भी करता है। जब आप उस पर जाके ऐसे ही थोप दोगे कि चल मूवी देख के आते हैं, वो कहेगा मैं नहीं जाता, मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली अगले की भी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो क्यों, उसे क्यों अच्छा लगेगा जब आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि चल, उसको लगेगा आपने तो मुझे वेला समझा हुआ है, मैं तो वेला हूँ, चलो मूवी देख के आते हैं, मुझे वेला समझाओ। नो, यू हैव टू बी वेरी सटल यानी कि आपको बड़े आराम से अपनी बात उनकी तरफ पहुंचानी है, उनको किसी तरह मनाना है, और बड़े आराम से और बड़े पोलाइटली उनसे पूछना है, ताकि वो आपको मना ना कर।
वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी टुनाइट, वही चीज होगी कि आप मेरे साथ आज रात को वुड यू लाइक टू, अगर आप वुड यू लाइक टू शब्द लगा रहे हो ना, अगले को इंस्टेंटली पता लग जाता है कि आप उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल, उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनकी चॉइस को कंसिडर कर रहे हो कि क्या वो आपके साथ जाना चाहेंगे या नहीं, जबकि भले वो हाँ ही क्यों ना बोले, उन्होंने पहले भी सोचा कि हाँ मैं तो जाऊंगा ही तेरे साथ, लेकिन अगर आप ये 4 शब्द लगा देते ना, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक विद मी, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ वॉक विद मी, उनको अच्छा लगता है कि उनकी चॉइस के बारे में आपने सोचा है, आपने सीधा जाके अपना डिसीजन उन पर थोपा नहीं, ठीक है। फिर है हाउ अबाउट कमिंग टू अ पिकनिक एट द फुटबॉल क्लब, ये होगा हाउ अबाउट कमिंग टू अ, ये भी वही सेम चीज होगी, हाउ अबाउट कमिंग टू द पिकनिक विद मी, हाउ अबाउट गोइंग टू डिनर विद मी, सो दे फील अप्रिशिएटेड कि मेरी चॉइस भी, इसने मुझे एक मौका दिया कि मैं भी कंसिडर कर सकूं, सीधा मुझ पर अपना डिसीजन आके थोपा नहीं, राइट। अब प्रेजेस फॉर सेइंग नो, बिकॉज अब देखो जब भी हम इनफॉर्मली अपने किसी कन्वर्सेशन में होते हैं, हम ना बोल देते हैं कि नहीं यार मैं आज नहीं जा रहा या मैं नहीं कर सकती, लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में ना ये नहीं कर सकते, सो उसके लिए हम ये चीजें पढ़ते हैं, आई एम ऑलरेडी बुक्ड, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, मेरे साथ मैं नहीं कर पाऊंगी, साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है आप उनको डिक्लाइन कर रहे हो, लेकिन वो भी पोलाइटली, आप उनको रूडली नहीं, गो अवे आई एम नॉट डूइंग दिस, नो दैट इज वेरी रूड। अगर आपको कहना, आपने साउंड्स फन का यानी कि आपको उनका प्लान अच्छा लगा है, आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि आपको उनका प्लान अच्छा लगा, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं, मेरे को कोई और काम, फिर आई वांट टू बट आई एम अनेबल टू, सेम पिछले वाले जैसे कि मैं चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, आई जस्ट डोंट हैव दैट टू गिव राइट नाउ, ये वाला लाइन आपको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये थोड़ा ना कुछ ज्यादा ही आगे चला जाता है, आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दैट राइट नाउ, अब कमिट वर्ड आ गया ना कि मैं अभी आपके साथ ये काम करने के लिए मेरे में ना इच्छा है ना मेरे में ताकत है, फिर अपॉलॉजीज बट आई कांट, अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट, अपॉलॉजीज आपने सॉरी पहले ही बोल दिया, अपॉलॉजी यानी कि अपॉलॉजीज मतलब यू आर सेइंग सॉरी, अपॉलॉजी यानी कि सॉरी फील करना, ठीक है, बट आई कांट मेक इट, मैं नहीं आ पाऊंगा, I can't take on any more responsibility. My body says yes, but my heart says no. ये भी यूज करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है। No, a simple no. अच्छा, हम कभी कभी सिंपल नो भी बोलते हैं ना, तो वो भी अगले को रूड लगता है, तो देखो जब हम चैटिंग पे किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि अगले ने जो मैसेज भेजा है उसने क्या अपने मन में टोन समझ के भेज दिया, वो आपको नो लिख सकता है अपनी तरफ से पोलाइट समझ के, आप जब नोट देखते हो तो आपको सिर्फ ये 4 लेटर्स जो है ना ये रूड लगते हैं, सो बेटर है कि नोट को जो है ना आप फेस टू फेस ही यूज करो, चैटिंग वगैरह पे मत यूज करो, चैटिंग के लिए आप ये बाकी सारे यूज कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके, राइट। उसके बाद मे बी अनदर टाइम, अच्छा मे बी अनदर टाइम से आप कंप्लीटली उनको मना नहीं कर रहे हो, आप बस कह रहे हो मैं आज नहीं जा सकती, मे बी दोबारा चलेंगे, मतलब कि फिर कभी चलेंगे बट आज नहीं जा सकते। शॉपिंग के लिए यूजफुल फ्रेजेस तो बेसिकली इसमें यही आते हैं कि आप डू यू नो वेयर आई कैन ट्राई, मतलब कि मैं अपने कपड़े कहाँ चेंज, डू यू नो, आप उनसे पूछ रहे हो तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई हमारी जॉब है आपको बताना, तो हमें अच्छा लगा कि आपने हमसे पूछा, ये नहीं खुद ही सारे कपड़े पकड़ के इधर तो घूम रहे हो, ट्रायल रूम ढूंढ रहे हो, नहीं वो तो फिर आप ही बेवकूफ हुए, ठीक है ना। तो सेल्स पर्सन का क्या काम है कि वो आपको हेल्प करे, तो आप उनके पास जाके पोलाइटली पूछते हो, डू यू नो वेयर आई कैन ट्राई माई क्लोथ्स, ट्राई दीज क्लोथ्स, माई क्लोथ्स नहीं दीज क्लोथ्स, माई क्लोथ्स हो गए तो आपने कपड़े जो आपके खुद के हैं, अभी आपने खरीदे थोड़े, अभी आपने ट्राई कर, सो डू यू नो वेयर आई कैन ट्राई दीज क्लोथ्स, डू यू नो वेयर इज द ट्रायल रूम, डू यू हैव अ साइज फॉर, डू यू हैव एन एक्सेल साइज फॉर दिस, डू यू हैव एन एक्सेल साइज फॉर दिस टी शर्ट, आप उनसे पूछ रहे हो, खुद पागलों की तरह नहीं ढूंढ रहे हो, उनसे पूछो, उनकी हेल्प लो, उन्हें भी अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स देयर जॉब, राइट। अगर आप उनसे नहीं पूछोगे वो अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे, और आप बीच में मेस क्रिएट कर रहे हो, कपड़े ढूंढ रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, कई लोग होते हैं ना शॉपिंग करते हैं, शर्ट निकाली अपने साइज की नहीं है वैसे ही रखती, हैंगर के अंदर भी नहीं रखते, वो कितना मेसी लगता है, फिर जो एम्प्लॉइज है फिर उनको डांट पड़ती है अपने एम्प्लॉयर से कि तुम उनके पास क्यों नहीं गए, वो तुम्हारी हेल्प के लिए क्यों नहीं आए, तो डांट उनको पड़ती है जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। सो इट्स बेटर जब भी आप शॉपिंग करने जाओ, it's better to ask the salesperson for that. Okay? So Okay, ma'am. next, ओके मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक किसी को भी, you can ask if you want to. नो मैम, अगर मेरा नेटवर्क अच्छा चलता रहा तो हम 7 तक क्लास ले सकते हैं, अच्छा नहीं
This free meeting थोड़ा will end थोड़ा in 10. थोड़ा थोड़ा कट के आवाज आता है, बाकी सब अब आ रही सब है? होता है। हाँ अभी तो आ रही, कभी कभी बीच बीच में आता है ना। यस मैम आ रही है। पूरा फिर हमारे पास लाइक 10 minutes है, सो लेट मी फिनिश अप इट रियली फास्ट वे। अच्छा, आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन का कुछ पता है? नाउन एंड प्रोनाउन? यस मैम। Noun is the name of person, place or thing is Okay, called one noun. person. Hold a second. One person at a time. Present, can you go first? And बाकी सब mute रखो अपने आप। क्या है? Can you tell me what a noun is? Noun is the name of person, place or thing is called noun. Very good. Very good. Like आप मुझे noun के examples दे सकते हो? like that Delhi, Mumbai, Goa, Punjab, etc. ओके, नेम में इंसान का नेम आ गया, Name, प्लेस name में जगह आ राहुल, गई। यस मैम, नेम राहुल वगैरह जो भी मतलब नाम होती है और जगह जो प्लेस होती है उसी को मतलब कर सकते हैं नाउन। सही है, बिकॉज मैं एक्चुअली यार यही कर रही थी। बाकी सबको भी समझ आया जो फैजल ने कहा है? डू यू अंडरस्टैंड इट और शुड आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर? यस मैम। सब आ गया समझ कि बताऊं? बिकॉज आपने सिर्फ यस मैम कहा, किस चीज को यस? उनके एक्सप्लेनेशन को कि मैं और कराऊं? Yes, ma'am. समझ में हाँ जी, Yes, ma'am. Got it. ओके ओके। सो नाम प्रोनाउन भी हम कर लेते हैं। सो ये वाली जो है, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला जो मेरे आपको दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर आपको कोई हो तो आप नेक्स्ट मीटिंग में मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। तो ये जो फ्रेजेस है ना, ये बड़े कॉमन चीजें हैं, ये आपने सुनी भी होंगी, कहीं पढ़ी भी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी हूँ तो आप एक बार पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए मैं थोड़ा हरी अप कर रही हूँ, ताकि मेरी आज का जो है मैं कंप्लीट करा सकूं। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना, ताकि हम फर्स्ट 5 2 आवर का मिनट्स। क्लास क्यों लेते हैं? हाँ जी, बोले 2 आवर का क्लास क्यों ले लेते? राजीव, आप प्लीज, आप मुझसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं? आपसे ही मैम बात अगर कर रहे आपका हैं। मैम मैं मेरा क्वेश्चन था मैम, हाँ जी, क्या हुआ? आई एम नॉट गेटिंग यू। कैन आई टेल मी? या स्पीक, वन पर्सन एट अ टाइम प्लीज। मैम मैं ये बोल रहा था ना कि क्या आप कोई दूसरा टाइम मतलब लैब आ सकते हैं क्या? एक्चुअली ये मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन कल क्लास 5 to 6 ही मैं रखा, 5 to 5:30 तक, सॉरी 5 to 5:30 तक ही रखूंगी मैं। एंड आई ट्राई कि मैं अपनी जो पीपीटी है थोड़ी छोटी रखूं, ताकि ज्यादा टाइम में, ज्यादा मतलब जितना कम टाइम है उसमें सारा हो सके। सो हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? इसका आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया है? Yes, ma'am. ओके। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें, जस्ट गो थ्रू इट। आपको जो नहीं समझ आ रहा उसको आप एक बार बस साइड में मार्क कर लो या कुछ कर लो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कल मुझसे पूछ लेना। ओके, तब तक मैं आगे चलती हूँ, ताकि मैं आपको आगे का भी बता सकूँ। आई डू हैव ओके why is it not going to the next one? Hold a second, please. Oh, just a second, please. I'll share it again. दिख रहा है? यस मैम। मैम थोड़ा जूम कीजिए ना। हाँ, एक सेकंड। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे सुस्त हो गए जाना, वहां पे आते ही जाने क्या हो गया तुम्हें? प्लीज अपना वो म्यूट रखिए, मैं आपको दोबारा करती हूँ। आई डोंट नो। यस मैम अभी अच्छा दिख रहा है। वो मैं आपको जरा स्क्रीनशॉट कर, स्क्रीनशॉट कर रही हूँ स्लाइड का। ये भी हमारे
तो क्या आपको दिख रहा है? यस मैम। So we have 4 minutes. Okay. Then we have polite and impolite phrase. अब आपने किसी से बात की, जैसे मैंने आपको बताया, even in a formal conversation and in an informal conversation, दोनों में आपका polite होना बहुत जरूरी है, right? So अगर आपको किसी का business card चाहिए, you don't say give me your business card. No, you have to ask for it. You don't have to tell them. You have to ask for it. Like, do you mind if I take your business card? Right? Go away. Go away बोला, अब किसी अगर मैं आपको बोलूं go away, you will feel bad, right? So that's why you have to say can we talk a little later? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? फिर है his performance was terrible. आप अब किसी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपको नहीं भी पसंद आई, so don't say कि उसकी परफॉर्मेंस टेरिबल. नो, ऐसा लगता है जैसे आप चुगली कर रहे हो उसकी. नो, you have to say his performance was not very good. आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया और आप बुरे भी नहीं बने, राइट? I don't like it. No, just don't say it in that way. I don't like it. क्योंकि ना वो फिर अगेन रूड लगता है कि I don't really like it. I'm afraid. You have to say that way कि I'm मैं कहना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगा. I don't really like it. I'm afraid. I'm afraid वाला लाइन लगा. I'm afraid का मतलब ये नहीं कि मैं डर गई हूँ, मुझे पसंद नहीं आया. No, in a very polite way उस चीज को बताने के लिए कि I'm afraid कि मुझे ना नहीं अच्छा लगा. So you're using it that. I'm afraid का मतलब यहाँ ये नहीं है that you are saying that मुझे डर लग गया उस चीज को देख के. नो, राइट? अगेन, आई डोंट लाइक द कलर्स इन दिस पिक्चर. आप सीधा आई डोंट लाइक मत बोलो, सीधा बोलो आई प्रेफर टू. यानी कि आपने ये बात अपनी बता दी कि मुझे कलर पसंद नहीं आया पिक्चर में, लेकिन मेरे हिसाब से ये कलर यूज होने चाहिए. ठीक, आपने उस लाइन में ये भी बता दिया कि आपको वो कलर पसंद नहीं आए और आप दूसरे कलर यूज करना चाहते हो और अगले को आपका पॉइंट समझ भी आ गया और उसे बुरा भी नहीं. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट. अच्छा, जब आपने किसी को पूछना हो कि क्या आप ये दोबारा रिपीट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और अगर आपको नहीं ना समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ, यू हैव टू यूज वन वर्ड, पार्डन, PARDON, जो ये लिखा हुआ ना ऑरेंज सबसे ऊपर, ये वाला वर्ड, पार्डन. पार्डन, PARDON, पार्डन. पार्डन यानी कि पार्डन शब्द बोलोगे ना, अगले को समझ आ जाएगा कि आप उनको पूछो कि वो दोबारा आपको बता दे कि आपने क्या कहना, राइट? मतलब वंस इसका मोर भी अगेन का उल्टा है ना मैम? हाँ मतलब जी, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ वंस मोर मैम प्लीज अगेन, तो जैसे कि उसका जस्ट अपोजिट है ना पार्डन? नहीं ऑपोजिट नहीं, उसके लिए छोटा शब्द है. पार्डन का मतलब मतलब ही उससे यही है कि आप मतलब दोबारा बोल मत, सकते हो जो आपने पहले बोला था. मतलब उससे रिलेटेड है ना, मतलब कि उससे मिलता है, जैसे कि वंस मोर प्लीज ऐसे मैं बोलता हूँ ना. आपको सिनोनिम का मतलब पता है? सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम्स. सिनोनिम का मतलब होता है कि हमने एक जो शब्द बोला ना, उसके लिए उस चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए और शब्द भी होते हैं, राइट? तो पार्डन जो है वो इस चीज का सिनोनिम है, राइट? इसका मतलब कि पार्डन का मतलब हो गया कि जो आपने चीजें बोली क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं लगा. सो यू जस्ट हैव टू से वन वर्ड, पार्डन. एंड आपको थोड़ा एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा. पार्डन, पार्डन मी. आप पार्डन या पार्डन मी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना? अगले को समझ आ जाएगा कि आपको उनसे पूछना है कि आप उनको कहना चाहते हो कि जो आपने पहले बताया था दोबारा रिपीट कर. एंड अगर आपने बहुत ही इनफॉर्मल का, आपको दोस्त के घर वाले हैं या कोई दोस्त है, उनको बोलोगे व्हाट, आप पूछना क्या क्या बोला तूने, ऐसे बोलने के लिए जस्ट सिंपल हैव टू से व्हाट वाज दैट अगेन, व्हाट वाज दैट अगेन, या सिंपल व्हाट. बट डोंट बी रूड ऑन योर फेस, बिकॉज आपके एक्सप्रेशन जो है बहुत काउंट होते हैं. वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट. So next वाले में you just have to say then when you want to apologize. Sorry, I'm late. I apologize. Yeah, I'm sorry. I'm sorry for being late. I apologize for being late. You just have to use these two words. So noun को ओके. प्रेजेंट ने बहुत अच्छे से बताया था. Pronoun. Pronoun जो है हम एक noun के बदल में यूज करते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे मेरा नाम मनस्वी है, मैं कहती हूँ मनस्वी went to the store. मनस्वी went to then Manasvi bought a few groceries यानी कि जो आपने घर का सामान खरीदते, सब्जी वगैरह, ठीक है? वो मैं आपको वर्ड दोबारा अच्छे से करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो. सो हम बार बार, आप अगर मैं कोई 4 सेंटेंस बोल रही हूँ और चारों बार मैं अपनी कोई एक्टिविटी में बता रही हूँ और चारों बार मैं अपना बार बार नाम ले रही हूँ, तो वो इरिटेटिंग नहीं हो जाएगा? उस चीज बढ़ा दीजिए.
Okay. A noun. A noun is a word that refers to a thing, a person, an animal, a place. Okay. So ये चार चीजें, एक थिंग क्या ही हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किताब हो गई, एक लैंप हो गया, एक क्या कहते हैं टेबल हो गया, एक चेयर हो गई, ये सब चीजें हो सकती है। पर्सन, अब जैसे पर्सन में मैंने अपना यहाँ नाम लिखा हुआ है, आपका सबका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम या आपके रिश्तेदारों का नाम या किसी का भी नाम, वो सब नाउन में आता है, राइट। एक एनिमल, किसी भी टाइप का एनिमल ले लो, जब आप उस एनिमल का नाम ले रहे हो तो इट्स जस्ट ऑल अ नाउन। प्लेस का भी वही चीज है, अमृतसर ले लो, पटियाला बोल लो, चंडीगढ़ बोल लो, जम्मू एंड कश्मीर बोल लो, कोई भी प्लेस का नाम ले लो, किसी रेस्टोरेंट का नाम ही क्यों ना ले लो, किसी भी डेस्टिनेशन का नाम ले लो, वो आपकी नाउन में आ जाती है। अच्छा, हमारे पास नाउन में दो तरीके के नाउन होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग बट नॉट अ पर्टिकुलर, यानी कि कॉमन नाउन का मतलब है जब हम किसी एक पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में, एक एनिमल के बारे में या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर के बारे में, किसी एक चीज को लेकर मन में नहीं बोल रहे। ओके ओके मैम। सो उसके बाद है जैसे कि सनलाइट हो गया, हैप्पीनेस हो गई, कोई भी हम पर्टिकुलर चीज को, एक चीज को मन में लेकर हम उसको नाउन में डिस्क्राइब करें। कॉमन नाउन होता है कोई भी चीज, और लैपटॉप या कोई भी एक, जैसे कि सनलाइट हो गई, हैप्पीनेस हो गई, एंगर हो गई, इमोशंस वगैरह, जो भी सारी चीजें जिनको हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में उससे बात नहीं कर रहे, सो इट्स अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन उसका उल्टा हो गया। प्रॉपर नाउन यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी, जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान का नाम ले लो, वो सब कॉमन नाउन में आता है, बिकॉज ये लोग कॉमन है, नॉर्मल लोग, इनको हम आपस में कोई, इनको दुनिया में कोई नहीं जानता। प्रॉपर नाउन वो होता है जब हम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रॉपर established place है, जो फेमस है, महात्मा गांधी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन बीइंग, वो हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़े हिस्से हैं, हमारी, मतलब कि वो, you know, he has been a part of our history for so long. I'm audible, right? यस Yes, ma'am. Okay. So then we have कोई भी और कोई प्लेस हो, जैसे ताजमहल हो गया, हमारा अपना गोल्डन टेम्पल हो गया, कोई भी वो चीज के बारे में जो हम बात करें, जिसका एक नाम हो ना, मतलब कि नाम यानी कि वो चीज फेमस हो, उसकी एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हाउस, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, हमारे एक्टर्स अमिताभ बच्चन जी, ये जितने भी नाम हैं, जितने भी प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड नाम है, एस्टैब्लिश्ड जगहें हैं, जिनका एक सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, हमारे हिस्ट्री में, जैसे क्वीन एलिजाबेथ, जैसे भी क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हुई है, तो वो कोई नॉर्मल लेडी तो नहीं ना थी, जो इंग्लैंड में पैदा हुई, बड़ी हुई और फिर बूढ़ी होके खत्म हो गई। नो, शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड हिस्ट्री, क्योंकि वो, आप गिनो तो वो इंग्लैंड की सबसे लंबी क्वीन रही। हाँ जी रमा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कोई प्रॉब्लम? नो। सो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन समझ आ गए? नाउन इन जनरल यू अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा pronoun. So a pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun refers to either a noun that has been already mentioned or a noun that does not specifically need to be named. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रोनाउन जो है ना, वो हम नाउन के बदले में यूज करते हैं। जैसे कि नाउन में हम नाम लेते हैं मेरा, मनस्वी। मैं आपको 4 सेंटेंसेस बताती हूँ। माय नेम, मनस्वी वेंट टू अ स्टोर, मनस्वी वेंट टू द वेजिटेबल सेक्शन, मनस्वी selected 2 carrots, मनस्वी bought 2 carrots. अब मैंने अपने नाम का रेपिटेशन 4 बार किया, आप 4 लाइनें सुन के बोर नहीं हो जाओगे? उस चीज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि आई, यानी कि मैं अपना नाम सिर्फ एक बार यूज करूंगी, मनस्वी वेंट टू द, मैं सेंटेंसेस बोल गई, सॉरी, मनस्वी वेंट टू द स्टोर, राइट? शी
फिर हम she यूज करेंगे. She went to the vegetable section. She bought 2 carrots. Sorry, she selected 2 carrots and she bought 2 carrots. यहाँ पे प्रोनाउन क्या था? क्या था प्रोनाउन यहाँ पे? Ma'am, she. Yes, it was she. So, आप मेरा बेसिक चीज समझ रहे हो ना, इसीलिए हम अपने सेंटेंसेस में हम खुद के बारे में बात करते हैं तो हम आई लगाते हैं. I went to the Yes. store. I went to the market. I am going to school. बार बार अपना नाम तो नहीं ना ले रहे हो, क्योंकि अगला सुनकर आप सुन के दोनों बोर हो जाओगे. बार बार अपना नाम क्यों ले रहे हो? इरिटेटिंग हो जाता है ना. तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए आप एक बार बस जिसके बारे में बात कर रहे हो, उस किसी भी चीज के बारे में, इंसान के बारे, जानवर के बारे में बात कर रहे हो, आप एक बार उसका नाम लेते हो ताकि अगले इंसान को समझ आ जाए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. उसके बाद आप प्रोनाउन यूज करते हो ताकि अगले को आपको बोले. आप बार बार नाम बोलोगे तो आपको भी अनइजीनेस तो होगा कि बार बार मुझे नाम लेना पड़ रहा है, राइट? तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव प्रोनाउंस. तो आई हो गया मेरे लिए, मी हो गया, आई हो गया, ये सारे प्रोनाउंस आ जाते हैं. फिर है ही हिम हम यूज करते हैं आदमियों के लिए, राइट? ही वेंट टू द स्टोर. ही प्लेस बास्केटबॉल. He is a very good basketball player. आपने एक बार बोला Madhav goes to the basketball court. He is very good at playing basketball. He has won medals for his team. ठीक है? आपको बार बार माधव का नाम यूज नहीं करना पड़ा. आपने एक बार माधव का नाम लिया, उसके बाद आपने ही लगा दिया. ठीक है ना? या फिर आप हिम यूज कर सकते हो, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है. ये हम पूछते हैं कि क्या तुम माधव को मिलने जा रही हो? माधव का नाम पहले हम ले चुके थे. यू विल आस्क द पर्सन, आर यू गोइंग टू मीट हिम? ठीक है ना? आपने मेरे, और ही हमेशा स्टार्टिंग में आता है मोस्ट केसेस में, और हिम जो है वो एंड में आता है सेंटेंस, या फिर बाद में आता है मोस्टली केसेस में. बिकॉज आपने कभी सुना है हिम इज गोइंग टू द स्टोर, हिम वेंट टू द पब्लिक प्लेस? इतनी ना बोलोगे, ही वेंट टू द पब्लिक प्लेस. सो ही जो है वो मोस्टली आपके स्टार्टिंग में आता है, या कभी कभी बीच में आ जाता है, लेकिन इट्स अ वेरी रेयर केस. और हिम जो है वो मोस्टली बाद में आता है, बिकॉज अब बोलोगे हिम इज टेकिंग हिज हिम इज वेकिंग अप राइट नाउ, कोई सेंस बनी? कोई सेंस नहीं बनी. ही इज वेकिंग अप राइट. ठीक है? फिर शी एंड हर, वो एग्जाम्पल हो गया. शी का भी वही है. शी इज गोइंग टू द स्टोर. शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. शी इज वेरी गुड विद हर फ्रेंड्स, राइट? सो हर, आर यू गोइंग टू हर हाउस? ठीक है ना? यहाँ पे हर लास्ट में नहीं आया, लेकिन थोड़ा पहले आ गया, लेकिन आता बाद में. आर यू हर फ्रेंड? हैव यू सीन हर ड्राइंग? हैव यू सीन द वे, वो तो शी में आ जाएगा. शी में भी और देखो, हाँ, हैव यू सीन द वे शी कुक्स? यहाँ पे शी बाद में आया ना, यहाँ शी पहले नहीं आया. यहाँ पे सवाल पूछा तो आपने कहा हैव यू सीन द वे शी कुक्स? क्या तुमने देखा है वो खाना कैसे बनाती है? आपका बोलने, आपका जो इमोशन था, जो आप बात कहना चाहते हो, वो चीज हुई, लेकिन जो है आपने अपने बस प्रोनाउंस की चेंज कर दिया और थोड़ा उनकी पोजीशन आगे पीछे होगी, लेकिन आपका सेंटेंस अगले को समझ आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो. अब मेरे इंडिविजुअल के लिए, मेरे खुद के लिए मैं आई मी यूज करूंगी, माई सेल्फ यूज करूंगी. ठीक है ना? ठीक है, आई मी माई सेल्फ, ये सब हम अपने लिए यूज करते हैं. ही हिम हम किसी अपने मेल कंपेनियन के लिए यूज करते हैं. शी हर फीमेल्स के लिए यूज करते हैं. अच्छा, जब हमने मल्टीपल लोगों के बारे में बात करी, जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप आ जाता है. अब आप ग्रुप में तो नहीं ना बोल सकते ही वर गोइंग टू, बिकॉज ही के साथ और शी के साथ इज एम आर लगता है, दे के साथ वॉज एंड वर लगता है. ठीक है? वॉज एंड वर कभी आप लगा सकते हो. आई वॉज एट द स्टोर, नो आई वॉज एट द स्टोर, यू कैन यूज इट, सॉरी. सो आप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली केसेस में ग्रुप के लिए, हाँ, मतलब ग्रुप के लिए हम दे देम यूज करते हैं. ठीक है ना? सो दे देम हो गया. अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ग्रुप में मूवी देखने जा रहे हैं. ठीक है ना? दे आर गोइंग टू द मूवीज. दे आर ऑर्डरिंग पॉपकॉर्न. दे विल गो टू द शो आफ्टरवर्ड्स. दे आया. ठीक है ना? कैन यू प्लीज गिव दीज डॉक्यूमेंट्स टू देम. अब आपका अगर ग्रुप बैठा मेरे दोस्तों का और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं अपने एक दूसरे फ्रेंड को बोलती हूँ कैन यू गिव दीज डॉक्यूमेंट्स टू देम, उनकी तरफ इशारा करती हूँ. अगले को समझ आ जाएगा काम क्या करना है और किसको डॉक्यूमेंट्स दे कर आना. ओके? उसके बाद आता है वेयर. वेयर, देयर, व्हेन, एक्सेट्रा. वेयर यानी कि वेयर आर यू गोइंग?
वेयर हैव यू केप्ट इट, यानी कि आप एक पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो चीज कहाँ पे है, आप पूछ रहे हो। वेयर, देखो ना, वेयर वाले डब्ल्यू वाले जितने भी होते हैं उनमें हमेशा क्वेश्चन मार्क एंड में लगता है, तो वेयर के केसेस में मोस्टली केसेस में क्वेश्चन मार्क लगता है। सो वेयर आर यू गोइंग, वेयर हैव यू बिन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर यू विल बी गोइंग, ठीक है ना, इन सब में आपका एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर आए। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे वेयर जो है इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन मार्क में नहीं आता, बट अभी मेरे लाइक माइंड में नहीं आ रहा, बट अगर मुझे दोबारा कभी याद आए सो आई विल टेल यू। देन वी हैव देयर। अच्छा, देयर में हम अगले को बता रहे हैं, देयर यू आर, बोला कि यहाँ है तू, देयर यू आर, अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। और यू नो मोस्टली किसी भी जब आप किसी को बता रहे हो दे आर देयर, यानी कि वो लोग वहां पे हैं। मैंने यहाँ पे दो मतलब प्रोनाउंस जैसे एग्जांपल्स में देयर इज टेबल, देयर इज एन एप्पल। नहीं, देयर इज द टेबल आप कह सकते हो, बट मोस्टली केसेस में छोटी बातों के लिए अगर आपने टेबल के बारे में बोला ना, आप बोलोगे हियर इज द टेबल, हियर इज द टेबल। कभी कभार आप इज को अपोस्ट्रोफी एस बना सकते हो, हियर इज द टेबल। देयर इज द टेबल थोड़ा नहीं करता सेंस, लेकिन हियर इज द टेबल, राइट, हियर भी है, वो भी प्रोनाउन में आ सकता है। सो हाँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ, कोई भी काइंड ऑफ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ जूसेस इन माय हाउस, ठीक है ना, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रीज, ठीक है ना। हम एक फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं या हम किसी चीज के बारे में अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी कि हम उस चीज को लेके पक्के हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, राइट। तो उस चीज के लिए आप देयर लगाते हो, और वेयर होता है जब किसी से आप श्योर नहीं हो कि वो चीज या वो इंसान या कोई कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, जब आप मन में क्वेश्चन सोचते हो ना, तब आप वेयर लगाते हो। देयर होता है जब आप थोड़े पक्के होते हो कि हाँ कि देयर आर योर पेन्स, या फिर दे आर ऑन द टेबल, दे भी हो गया, और दे हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और यू नो कीज हो गई जो प्लूरल में होती है। देखो सिंगुलर में आपका क्या कहते हैं वो इट लगा सकते हो, बट आप जब आप प्लूरल की बात कर रहे हो थिंग्स में रिलेटेड, तो आप दे यूज कर सकते हो। देयर आर योर कीज, आर दीज द कीज यू वर टॉकिंग अबाउट, सी दीज भी आ सकता है, आर दीज वर द कीज यू वर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो चैट में किसने क्या लिखा है, class. Actually, Dipanshi, I also joined, this whole system yesterday. So I don't have the links with me. You can ask if you need to. The one thing you need to do is you need to download the app pre-campus, and you can also, and you can also visit the YouTube channel. वहाँ पे भी लाइव क्लासेस होती हैं, so आपको डे 1 से लेके डे 90 तक आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छे से करना है, हाँ, तो उसके लिए आप जो है ऐप डाउनलोड करो फ्री कैंपस का, अपने एंड्रॉइड में या आपके पास अपना जो भी आपका फोन है उसमें आप फ्री कैंपस डाउनलोड करो। वहां पे आपको डे 1 से लेके डे 90 तक के लिए पूरा आपको कंटेंट मिलता है। ओके मैम यूट्यूब पे लाइव कब आता है मैम? यूट्यूब पे लाइव आई गेस 5 to 6 and 6 to 7, जितना मुझे पता है। आप यूट्यूब का पेज आके खोलो, वहाँ पे वीडियोस हैं, यू सी दैट। आपको अगर हेल्प चाहिए एक्स्ट्रा, अगर कभी कभार यहाँ से नहीं समझ आया, टाइम से जल्दी ओवर हो गया, सो यू हैव दैट। सो Okay, ma'am. एनी Ma'am? प्रॉब्लम? नो Hello, ma'am. प्रॉब्लम। हाँ जी, या मैम Ma'am, how long these classes will be continue? आई एम जस्ट फिनिशिंग इट अप। बस मैंने ये प्रोनाउन का करना था, थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट बस मेरा बस Ma'am, हो ही I गया। am बस saying आपसे about days. How many days? Oh, days. Actually, Yes, this is ma'am. a total of 90 days. So 3 months के लिए है, and you are more than welcome Okay, to ma'am. join whenever you want. And आपको जैसा मैं आपको कह रही हूँ, do download the Yes, app of ma'am. Free Campus because it will help you. Because अगर आपका कभी Yes, ma'am, यहाँ I मिस हो have. जाए, हाँ, okay, मैं वैसे ही कह रही हूँ generally. If Yes, you have any problem, अगर आपको मेरा कभी कभार नहीं समझ आया, it won't be the same in the app, but you will get the idea of it. वहाँ पे इतना डिफरेंट भी नहीं होगा because टॉपिक का मीनिंग तो वही सेम ही होता है ना, बस सबका मैम पढ़ाने का आपने तरीका डिफरेंट। मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? Of मैम मैं course. पूछ रहा था ना कि आपका वीडियो डाउनलोड है यूट्यूब पे?
मेरा अभी YouTube पे नहीं है बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, सो अभी मेरा थोड़ा, आपने शायद कल पता हो कि कल थोड़ा इंटरनेट का इशू आया था. आई डोंट हैव द वाईफाई टू सपोर्ट इट, बट डोंट वरी, आई एम गेटिंग दैट प्रॉब्लम फिक्स्ड. So in no time I will be able to conduct the YouTube live classes too, and I hope I get to do that because I really do want to. And that's that. And any other problem? Do you want to ask me anything? If not, then we can end the meeting. So any problems with anyone? कुछ पूछना चाहोगे? Anything regarding the subject or like regarding the topic? नो No, मैम, ma'am. कल Thank you, ma'am. So are you satisfied with जो मैंने आपको आज पढ़ाया है? समझ आया आपको? यस मैम, Yes, अगर ma'am. डाउट आएगी तो कल पूछ लूंगा. हाँ हाँ, नो वो आप जब मर्जी पूछो, डाउट का मुझे कोई, आप जब मर्जी पूछो, आई विल ऑलवेज आंसर यू. सो दैट्स इट, देन वी कैन एंड द मीटिंग. क्या मैं ये स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? या श्योर श्योर. हेलो मैम. हाँ जी, हेलो. या somebody said hello. क्या हुआ? मैं सुन रही हूँ. Somebody said hello. No? Okay. Screenshot ले लिया आपने? यस मैम. So can I end the meeting now? It was very nice to meet you all today. I hope I see you tomorrow. And so that's it. Okay, bye ओके everyone. मैम. Bye, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye.